Let's start. Spring Boot framework, as we call this Spring. It is a part of Spring framework. So Spring framework, sometimes we call this. And what we can do with Spring Boot framework, can develop web apps for sure, of course. If it is a web application, definitely you can. I mean, it supports applications, so you can definitely create web applications. Plus, is quite popular nowadays. Every single web application thing REST API. So you guys have heard about it. API is API. There is lots of. Everybody's talking about APIs. API kind of a buzzword for today's development environment. इंटरव्यू चल जाओ अगर आप कहते हो कि yes I have developed multiple APIs, they will ask you how you create. You can say that I have used Spring Boot. That's one way, of course. That's not the only way to create APIs. Spring Boot gives you lots of functionality or features, makes easy create these APIs. Fine. When it comes to Spring Boot, you can do these things. Either you can go for web applications or you can go for REST APIs. Okay, that's done. Now, once you have web applications, so of course, as of now, we have learned about server JSPs. If we don't talk about Spring Boot framework, it is possible by using server JSPs, right? You can go for these technologies, but again, they're really old technologies, 30 years technologies. Don't think that anyone or anyone want to use this thing. Next, you can go for Spring, which is I'm talking about, which is quite popular at some time back. Spring MVC, Model View Controller. This by using Spring MVC, you can create web applications. But again, uh, it's quite complex to do, and cannot just go straight forward and write your web page. You have to do lots of configurations. Then only you can print a single stuffs, or you can use definitely the Spring Boot. But in our class, in our lecture, the topics wise or project wise, we are going to use Spring Boot for REST API. Yeah, when it comes to web application, you can use that technology. So far, this is the latest one, Spring Boot, and yes, till today, if someone asks me that, okay, you have to create a web application just using Java. Okay, I'm saying just use Java. That means backend and frontend both are using Java technology. So I'll definitely go Spring Boot technology. But nobody do that. They tend to do what? They create APIs Java and backend. I'm talking about backend. And when it comes to front end technology, they go for React, Angular, or PHP or any other technology which is popular. Okay, but again, we are not going to create any web application required at all, but we are going to use REST API. So again, REST API is one of the kind of a quite interesting term, REST API. Nowadays, if someone is using Java technology or they knows Java, and ask you, that, okay, you have to create API, they will go for Spring Boot. Is quite simple. Don't have to like configure much special things. Just a minimum configuration you have to do in your application, and your application is okay. That's all about REST API. Now, let's suppose you have created your API. Now what? How you are going to test it, right? For that, you have to go for Postman. Postman for testing these REST APIs. For testing APIs, right? Why Postman? Because we are not going to develop any UI, because ultimately what happens if I have to create a scenario for you guys. So this is your front end, back end, and what front end is doing here, it generates request, gives you, and response. Front end sends request, back end generate response, right? This kind of image we have seen earlier in our JSP.
Okay, but this time it's not a web request. Okay, calling it FE, front end. Dot BE, backend. Now front end says, or it, what it request, and generate request goes from left to right, response comes from right to left. Quite simple, nothing special about this image. Now, what is special about here is front end is talking in a different language. Yep, language I'm talking about here. Check this out. Then I'll go back to Okay, so we have a front end. You can sometimes call this client. So backend. Fine. Now, when it comes to request, guys, please pay attention here. When it comes to request, this time request can be in any format. So nowadays it could be in JSON or in XML. Okay, the language you're talking about. Because when client and servers are interacting, now we are specifically specifying the language or the medium they're going to interact. Client sends request to the server, and the language or the type they are communicating, like we are communicating right now. So I'm speaking in English, sometimes in Hindi. That's our medium. Likewise, client sends request, and that's a medium, JSON or XML. Okay, both are different. Okay, that's the format. And once backend receives that request, it understands that language, then interprets what client is requesting and generates response. Again, in the same fashion, either it could be XML or JSON. Again, I'm sending either one, not just both can be used. Either you're going for JSON or XML. Don't mix up. One time, one request type. Could be JSON or XML. Now, when it comes to client, this time client is different. It could be PHP language, could be the .NET or C Sharp, whatever. Then React, so on, whatever language heard about it. That's a client side language. These guys are interact XML, and we are assuming that backend is in Java language. Did you guys understand what's happening here in terms of JSON or XML? Yes, sir. The topic in front end backend. Okay, that's done. Now let's go back to first image. So I mentioned that we are going to use this tool. That's actually a software. You guys have to download it. You can download any latest version space, because it's not a software which interacts your Java or front REST APIs. You can download or use any latest version. That one is also. Please download this software. So why we are using this Postman? Because we don't have any UI. Because right now, what we understand here, client sends request and server sends response. Time we don't have anything, right? If you notice, we don't have PHP, .NET, C Sharp, React, Angular, whatever. We don't have this technology or language right now. We don't have understanding about it. Definitely, we cannot create front end or a client side. How we will verify that API is working fine or not? That we are going to use for testing. Yes. Why? As we don't have front end code. Have this thing, so how we will test whatever you have done, we test it. That's the first thing you have to do after getting an API. Okay, that's now we know what we are going to learn, why we are learning,
how to test it. But again, still I don't know what. Okay, not for today. That's about APIs. Maybe let's discuss some more stuffs about the starting API call. A is a big thing. Spend some time there. But for now, let's focus on objects or how you represent any JSON. Anyone who knows JSON, how it looks like? Anyone? Yes, sir. No, sir. That's good thing. That means you guys are clean. Date. I can fill you up with this. Okay, so we have when it comes to JSON, it starts with curly brace, ends with curly brace, and between that, you can give multiple types. This is a empty JSON object. Empty JSON. Okay, that's fine. Done. That's how you can. Okay, fine. What about if it has some data and definitely what you will do with the empty object? Fill it. That you can do definitely. Again, that's one format. Another format is you can also create empty JSON object by doing that was curly brace, curly bracket. It's also possible that your JSON object can be represented in square brackets as well. And guys, listen carefully. This is empty JSON object, empty collection or array. Fine. That means more than one, right? We know this thing. What is array or what is collection? We have seen this code Java class. What it is. If you see curly braces, that means it's an object. If you see square brackets, so you can say that's a collection or an array. Fine. Think about okay, now I have to give some body to. Don't worry, guys. It's really simple. Don't take it that way. Okay, really simple. Right now, this is an empty object. Now I need to fill the object. Let me do it. The name colon ra. Take it this going to be key value. Fine. Done. Text for this. The example. Fine. That's how you can show the data in your JSON object. A key, the name, and RAM as and when. Can we have multiple fields? I'll just copy it, paste it, just put a comma. Guys, notice it. Now I'm putting a comma, and then again double quotes, password. That's it. Done. Because I'm not going to enter any other field after this of comma. But if you think that you need more values, then you can go for another object by putting comma. So far good. I hope it's not a big thing. That's how you can go for adding multiple fields. Now we know how you can represent these stuffs, empty object or empty object. सर Yes. यहाँ पे सेमी कॉलन भूल गए आप पासवर्ड के बाद Semicolon colon है वो double quotes ओ ये सर डबल कोट से भूल गया मैं double quotes इनका मिस्टेक ऐड करा था वो जाता जा रहा था ठीक है हाँ डबल कोट से क्लोज भी दिस इज डन क्वाइट सिंपल राइट
Now, if someone asks me, then JSON object in a Java class, right? That's what we actually do in coding. Present JSON object into a Java class, and there comes the Spring Boot. Makes things Spring Boot करके आप आराम से अपने JSON ऑब्जेक्ट को Java क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर उसकी वैल्यू को मैप कर सकते हैं. Only condition is if you have to map this JSON object in a Java class, make sure what you have to make sure. Right now, this is an empty object, so I don't know what's the class name. Let's assume any class XYZ. That's my class name. Body starts, body close. Now, what's the key here? Key name is the name. What I will do, I'll give private, and I am 100% sure that field has a string type, right? It has a value. What's the type of value? String. I'll say string. Then what's the key name? It's username in small. So username in the same case, and then yep, that's it. What we actually did, we have mapped our JSON object to an Java class. Simple. That's how we Sir, create both again the repeat. class. Huh. Okay. So this is an Java and JSON Yes, sir. object. Yes, sir. Task is to convert it or map it its data into an Java class. आपको क्या करना है? JSON object की value को map करना है class XY. How you can do that? You have to follow certain things, but you have to make sure that you have a class. Okay, so I can name it XYZ. At runtime, you can pick any name because you have to give some meaningful name. For now, I picked X, so replace. Then after, you have to create fields in your class. You can map this thing. Actually, what? This is the object, and this is its field. तो मुझे एक्सप्लेन करना कि ये एग्जैक्टली है क्या चीज. सेक्शन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स एंड्स द फील्ड. फील्ड है ये जेसन ऑब्जेक्ट की फील्ड. देन जब जेसन ऑब्जेक्ट क्या है ये कि यूजर नेम एंड दिस होल कॉम्बिनेशन नोन एज जेसन फील्ड. अभी सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं सब टर्म यूज कर रहा हूँ. नॉट 100% करेक्ट, बट फॉर नाउ यू कैन से जेसन फील्ड. लेटर वी कैन टॉक अबाउट मोर टेक्निकल. और उसके फिर जो जेसन फील्ड है उसके की वैल्यूज होते हैं. ये इसका यूजर नेम, वैल्यू. ओके, तो आपको क्या करना है? अब someone ask you to okay, so convert your JSON object into Java class. Create a class and then make sure JSON field का एक field बनाना है आपको अपने class के अंदर. एक थोड़ी सी एनाटॉमी समझ में आ गई कि हाउ हमने Java class में मैप कर दिया. हाउ इट इज फील्ड का जो की का नाम है हमने फील्ड का नाम रख दिया. वैल्यू का टाइप है वो स्ट्रिंग है. वैल्यू टाइप ऑफ वैल्यू स्ट्रिंग, राइट. वी हैव गिवन यहाँ पे फील्ड की का नाम था फील्ड नेम, प्रॉपर्टी, क्लास प्रॉपर्टी, वेरिएबल. एंड आई एम राइटिंग दिस टर्म्स अगेन अगेन. जावा में सीखा मल्टीपल नाम हो सकते हैं. फील्ड प्रॉपर्टी वेरिएबल नेम यहाँ पे कन्वर्ट हो. इवन क्लियर नाउ. Yes, sir. Dear. जो पोजो हमें अल्टीमेटली पोजो क्लास ही बनानी है, कुछ ऐसा बड़ा काम नहीं करना. ठीक है स्टोरी तो ठीक है, आप प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी. मैं अभी और एग्जांपल बनाऊंगा, बहुत छोटे एग्जांपल पिक करें. अब नाउ वी हैव सेकंड ऑब्जेक्ट. इसको ट्राई करते हैं. लेट्स कन्वर्ट दिस जेसन ऑब्जेक्ट इनटू एन
जावा क्लास, शायद और मजा है। ठीक है, ट्राई करते हैं। अगेन आई पिक एनी रैंडम क्लास एक्स वाई जी, क्लास वाई जी, देन कर्ली ब्रेस ओपन। ओके, तो पहला फील्ड क्या है? यूजर नेम, टाइप का स्ट्रिंग, प्राइवेट तो रहेगा क्योंकि वी आर अबाउट टू क्रिएट एन पोजो क्लास। अब पोजो क्लास वी आर गोइंग टू क्रिएट, प्राइवेट रहेगा। देन आफ्टर टाइप का रहेगा, दैट डिटरमाइंस द वैल्यू। सो नाम स्ट्रिंग, सर ये तो बिन क्लास है। पोजो क्लास भी तो होती है, यस सर। भी बोल लो। हमारी सर पोजो क्लास भी, बाद में आप याद दिलाते ना कि मैं तब से पोजो पोजो बोल रहा था। तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे थे। कोई बात नहीं, कई बार वो जो क्लास बना रहे हैं अभी, क्योंकि मैं अभी स्प्रिंग बोट, मैं तो स्प्रिंग बोट की बात नहीं कर रहा ना। मैं जैसे स्प्रिंग बोट पे आऊंगा तो मैं इसको फटाफट व्हील बोलना शुरू कर दूंगा मैं। अभी हम सिर्फ देख रहे हैं जेसन ऑब्जेक्ट, जेसन ऑब्जेक्ट से जावा का क्लास कैसे बनता है। अल्टीमेटली भी पोजो क्लास बन रहा है ये, क्योंकि अभी तक मैंने स्प्रिंग बोट कहीं नहीं कहा नहीं ना। हमने बस स्प्रिंग बोट कहाँ यूज करा? यस तो पहला इमेज था, यहाँ पे बात करी स्प्रिंग बोट, यहाँ बात करी हमने कम्युनिकेशन फ्रंट एंड और बैक एंड। अभी तक मैंने स्प्रिंग बोट के बारे में ज्यादा डिस्कशन करा ही कहा मैंने ना। बस पहले इमेज में ये बता दिया कि स्प्रिंग बोट का यूज क्या है। हम उसके थ्रू रेस्ट पेज बनाएंगे। टेस्ट कैसे करेंगे? क्योंकि हमारे पास फ्रंट एंड नहीं है, तो हम फोर्स यूज करेंगे। खत्म, स्प्रिंग बोट यहीं पेज तक था। बाद हमने कम्युनिकेशन पढ़ा फ्रंट एंड बैक एंड का। उसके बाद हमने देखा कि जेसन ऑब्जेक्ट को जावा में कन्वर्ट कैसे करते हैं अभी जवाब तक। यस ठीक है सर। ना, तो अभी इसलिए पोर्ट जा पोजो कोर जावा है, क्लास। इसलिए पोजो क्लास बन रही है। ठीक है जी, अभी तक सिर्फ कोर जावा में हम हैं, और हम देख रहे हैं कि हाउ टू कन्वर्ट जेसन टू अ पोजो क्लास। ओके पहले सर। पहले फील्ड हमने बना लिया प्राइवेट स्ट्रिंग यूजर। नेक्स्ट फील्ड पासवर्ड है। अब इसका कंटेंट देखो, ये क्या है? ये 1 2 3 है ना। तो आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने की वैल्यू को डबल कोट्स में रखा था, बट इफ यू कैन सी 1 2 3 इज एन न्यूमेरिक वैल्यू, राइट? न्यूमेरिक वैल्यू है। तो अगर आप चाहें तो इसको इस तरीके भी लिख सकते हैं। मैं पहले इसको कंप्लीट कर देता हूँ, या तो दूसरे का क्या है इसका। व्हेन यू आर श्योर 100% श्योर दैट योर टाइप इज ऑलवेज सेम टाइप, तो टाइप का इसका इंट 1 2 3। अगर चाहो तो उसको लॉन्ग में कर लो, अगर लगे कि ये रेंज बड़ी हो रही, रेंज मतलब 3 डेसिमल से 5 या 6 डेसिमल जाएगा तो उसको लॉन्ग कर लो, LONG लॉन्ग। अगेन छोटा वाला, कैपिटल क्लास वाला नहीं, प्रिमिटिव टाइप। और यहाँ पे इसका टाइम रख दिया मैंने पासवर्ड। बट अगेन ये पासवर्ड है, तो अभी जो 1 2 3 दिख रहा है वो इंट के टाइप है। तो मैं इसको अभी मैं इसका एक काम करता हूँ, स्ट्रिंग कर देता हूँ। सेम एग्जाम्पल और बना लेंगे लोग, और रहेगा फील्ड का नाम पासवर्ड। अगर आपने ये कीज के नाम यूजर नेम यहाँ पर है, पासवर्ड यहाँ पर है, अगर ये मिस कर दिया तो मैपिंग नहीं कर पाएगा फ्रेम। ये इसका एक तरीका हो गया। नाउ सेम वे अगर मेरे पास ये चीज, मैं श्योर 100%, ये सिर्फ और सिर्फ टीजर ही रहेगी, न्यूमेरिक वैल्यू। मैं इसको है। अगर ये स्ट्रिंग में है तभी डबल कोट्स में जाएगा, अदरवाइज ये ओपन जा सकता है। अगर ऐसा होता है, क्लास जनरेट करनी है, again you have to follow the same pattern, some class crazy curly brace open close। उसके बाद प्राइवेट हमेशा फील्ड रहेगा क्योंकि वी आर अप टू क्रिएटिंग अ पोजो क्लास। देन यूजर नेम स्ट्रिंग टाइप का है, फील्ड का नाम यूजर नेम, कॉमा क्योंकि एक और नॉट कॉमा, सेमीकोलन। नेक्स्ट फील्ड हमारा क्या है? प्राइवेट रहेगा। नेक्स्ट फील्ड पासवर्ड है, इसका वैल्यू का टाइप क्या है? इंट। मैं यहाँ पे इंट रख लूंगा, और की का नाम क्या है? पासवर्ड, स्मॉल में। डन। ठीक है, डन, दैट्स इट। व्हाट वी जस्ट डिड, वी हैव मैप्ड अवर जावा ऑब्जेक्ट, or you can say vice versa, JSON object into a Java class. This make critical thing that what's your type of your variable. Accordingly, you have to change the thing. String, that भी कर देता हूँ। string में था, string में गया। Next example में 1 2 3 was in int में गया। clear हो गया? अगर नहीं तो क्लियर है सर। क्लियर है सर। चलो ठीक, चलो इसमें टफ कर देते हैं, है ना? डेढ़ थोड़ा हटा देते हैं, फिर थोड़ा और टफ करते हैं इसको। अभी तक हमने सिंपल देखा कि भाई एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, करती हैं। एम्प्टी ऑब्जेक्ट तो बहुत आसान है बनाना, मैं इसको कंप्लीट नहीं करूँगा, बस समझाने के लिए। अगर मुझे इसका जावा क्लास बनाना है तो क्लास भाई बन गया भाई इसका जेसन ऑब्जेक्ट।
एम्प्टी ऑब्जेक्ट तो एम्प्टी ऐसे बनेगा, इसके अंदर कोई फील्ड नहीं है तो इसके अंदर फील्ड नहीं बनेगी। ठीक है, नाउ लेट्स मेक इट मोर कॉम्प्लेक्स। ये जावा क्लास में तो बहुत कुछ हो सकता है, ये तो बेसिक था कि हाँ एक फील्ड है, टाइप स्ट्रिंग। अगर ये कलेक्शन हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ तो, है ना, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फॉरवर्ड, दिस टाइम वी हैव अ जावा ऑब्जेक्ट फाइन में पहला, ओके, पहला फील्ड मैंने यूजर नेम रखा, तो अलग रख लेते हैं, आईडी कर दिया। आईडी है तो अल्फा न्यूमेरिक होगा डेफिनेटली 1 2 3। आईडी है तो नंबर कर लेते हैं 1 2 3 1। नेक्स्ट फील्ड है नेम की, आईडी और नेम साइन कर देता हूँ। अब ये नेम है तो डेफिनेटली ये इसमें होगा डबल कोट्स में, क्योंकि स्ट्रिंग में जाने वाला है। क्या, ओके, तो फील्ड हम चेक कर चुके हैं। नेक्स्ट फील्ड, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये बोल रहा है कि मेरे पास दो जेसन ऑब्जेक्ट हैं और ये कुछ ऐसा दिखता है, थोड़ा सा इंटर्न, ये कहते हैं ना कि नेस्टेड जेसन ऑब्जेक्ट, वो मैं बनाने वाला हूँ। मैंने कर दिया एड्रेस, हॉबी कर देते हैं। अब हॉबी में सीन चेंज होगा। हॉबी इज जस्ट नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स नॉट अ फील्ड, इट्स एक्चुअली ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट, ये कर दिया मैंने। पहले क्या हुआ, मैंने कर दिया एक्चुअली कलेक्शन है। में करा ले। अब बताओ, अब इसका जावा ऑब्जेक्ट कैसे, कौन ट्राई करना चाहता है आप लोगों में सर एक तो पहले ये आप क्लास लोग कर लो, बनेगी देखो। ये तो मजा आता है। नेक्स्ट बोलो प्राइवेट कैसे बनेगा। प्राइवेट इंट इंट और आईडी, आईडी आईडी। यस सेमीकोलन, सर, है ना। यस सर। फिर नेक्स्ट ए प्राइवेट प्राइवेट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग हो गया। स्ट्रिंग के बाद सर नेम, हाँ नेम। ठीक है डन, चलो प्राइवेट को इसके दे देता हूँ। बाद अब इसके इसके बाद हम कलेक्शन यूज कर सकते हैं। बिल्कुल कोई भी अच्छा सा कलेक्शन यूज कर लो, क्या लगता है कौन सा कलेक्शन यूज करोगे, कौन सा फेवरेट है सर तुम्हारा। लिस्ट, लिस्ट बिल्कुल फेवरेट सबको लगता है, कैपिटल एल। और एंड सर इसका टाइप्स स्ट्रिंग टाइप का, सर स्ट्रिंग टाइप। क्या बोलते हैं इसको, जेनरिक टाइप, जेनरिक। ऐसे जेनरिक टाइप, यस सर। यहाँ पे क्या आएगा एंड इसका, नेम हॉबी। टेक्निकली ये हॉबीज होना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया हॉबीज, है ना, क्यों कलेक्शन दिख रहा है वो। एज अ जावा डेवलपर और एज अ बैकएंड डेवलपर यू शुड, ये अपने फील्ड का नाम कर रखा है। अब यहाँ हॉबी लिखा है तो मतलब एक हॉबी होगा, यहाँ पे हॉबीज होना चाहिए था। इसको चेंज करूंगा तो वो एक गड़बड़ लगेगा कोई नहीं आइडली, सर, है ना, तो ये ठीक है। हॉबीज होना चाहिए, अपने में गलती मत कर। सिंपल है, समझ में यस आ गया सर। ना, आसान है क्लास बनाना, देखा, Yes, sir. फंडामेंटल समझ में आ गया। जेसन बहुत आसान था, दैट्स व्हाई इट गॉट पॉपुलर। इनिशियली इट वाज एक्सएमएल, जब जेसॉन नहीं था मार्केट में, तब पीपल और द डेवलपर टेंड टू यूज एक्सएमएल प्रोग्रामिंग। और एक्सएमएल बहुत टीडियस है भाई, बहुत ज़्यादा टीडियस। देख सकते हो आप लोग जो हमारे प्रोजेक्ट थे उसमें, पर रिंग का हमने प्रोजेक्ट था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एनोटेशन, ये क्या है, ये एक्सएमएल यूज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, एक हेडर टैग है, फिर रूट टैग है, एट्रीब्यूट्स और उसके फीचर, उसके अंदर मल्टीपल टैग्स है। कैसे ही कर सकते हो, एग्जैक्टली क्या है, ये क्लास का रिप्रेजेंटेशन तो है। थिंक अबाउट, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, क्लास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर मैं इसको कॉपी कर लूँ, पुराना क्लास ये वाली, मैप करो एक्सएमएल में, पे अटेंशन गाइस, मैं क्या कर रहा हूँ, इस जावा क्लास को एक्सएमएल में कन्वर्ट कर रहा हूँ। क्या करूँगा,
क्लास है XYZ, थिंग्स आर कनेक्टेड, मैंने आईडी रख दिया XYZ। पहली प्रॉपर्टी क्या है इसकी, यूजर नेम, हाँ, सर यूजर यूजर नेम नेम कर दूंगा मैं। वैल्यू और मैं इसकी डिफाइन कर रहा हूँ तो कुछ भी, राम हम राम वाला यूज कर रहे तो राम यूज कर दें। फील्ड क्या है इसका, पासवर्ड, पासवर्ड वैल्यू दिखा देंगे हम लोग 123। 1 2 3। क्या किया मैंने यहाँ पे, मैप तो कर दिया, टाइम लगा। अगर आपको यस बेसिक्स सर। पता है तो ये आराम से कन्वर्ट कर सकते हो। इनिशियली पीपल टर्न टू काइंड ऑफ स्टफ, थिंक अबाउट, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि ये वाला अच्छा लग रहा है, आसान जेसन सर। है ना, जेसन है ना, सिंपल। दैट्स यस व्हाई सर। जेसन पॉपुलर हो गया, अभी तक पॉपुलर है, आई डोंट थिंक फेस कर पाएगा। जब तो नई लाइब्रेरीज आ रही है, बहुत सारी लाइब्रेरी चलता रहेगा, तक है जावा टू क्लास टू XML कन्वर्जन कर सकते हैं। थोड़ा सा एक और इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा और एनहांस करते हैं। फर्स्ट कलेक्शन, व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट हो, ये रहा, सेम यूज़ करते हैं आईडी, या फिर इसी को यूज़ करके थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, 101 कर लेते हैं, रिंग टाइप का ऑब्जेक्ट। ओके, ये तो हमको पता लग गया। अब एक और ऑब्जेक्ट बनाया, इसमें लिखा एड्रेसेस पर, कि मैं ऑब्जेक्ट बनाने वाला हूँ गाइस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कलेक्शन, कलेक्शन में देख लिया। ऑब्जेक्ट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं जावा में हम लोग, सॉरी जेसन में, कर्ली ब्रेस के साथ, राइट। सर Yes, sir. व्हेन इट कम्स टू जेसन वी ऑलवेज शो ऑब्जेक्ट इन कर्ली ब्रेस, अगर कर्ली ब्रेस देख रहा है मतलब ये जावा का ऑब्जेक्ट है। ओके, अब एड्रेस में क्या करें, ऑब्जेक्ट है तो डेफिनेटली इसकी की वैल्यूज वैल्यू होंगी, फील्ड होगा, है डेट, कंट्री और हमेशा जो आपका जेसन रहेगा वो मोर लेस स्मॉल में रहता है, मल्टीपल तरीके होते हैं, और अगर आपको बेटर दिखाना है तो हमेशा ही, ठीक है। हो गया भाई, हमारा जेसन ऑब्जेक्ट बन गया। नाउ व्हाट इफ, हाउ टू क्रिएट जावा क्लास, वो कैसे बनेगा, ये तो सेम रहेगा, तो टाइम बचाते हैं, ट्विस्ट कर देते हैं, लास्ट में ये हॉबीज हो जाएगा। अब क्या चेंज करेंगे शुभम, इतना तो सेम रहेगा। नाउ व्हाट, सर। आई थिंक नेस्टेड क्लास बना दें यहाँ पे। बस, क्लास क्लास के अंदर क्लास, एक एड्रेस नाम से क्लास बना लेते सर। नहीं अभी बिजनेस से क्लास नहीं पता, पढ़ाया भी नहीं आप लोगों को, सिंपल रखो चीज़ों Sir, को, private. प्राइवेट, सर एड्रेस टाइप का एक एड्रेस ले Address. लेंगे। Address. ऐसा रहेगा यस कुछ। सर। यस सर ऐसा Yes. कर सकते हैं। और मैं क्या करूँगा उसके बाद, नाम से क्लास बनाऊंगा, करेक्ट। Yes. यस Yes, सर। sir. क्लास बनानी पड़ेगी ना फील्ड के लिए, क्लास एड्रेस कर्ली ब्रेस, इसके अंदर प्राइवेट डेट, स्ट्रिंग टाइप का है, और होप नाउ यू हैव कॉन्फिडेंस कि आप आराम से जेसन को क्लास में कन्वर्ट कर सकते हो, करके देखो तो कन्वर्ट कर पाओगे ना। यस सर। Yes, sir. तो अब आपके बेसिक्स क्लियर हो गए कि हाउ जेसन वर्क, ये समझ में आ गया ना, तो समझ लो आपका 30% तो स्प्रिंग बूट ऐसे क्लियर हो गया। समझ में नहीं आता कि चल क्या रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, क्या टाइप का फील्ड, रेस्पॉन्स क्या आ रहा है। तो सैंपल दिखाता हूँ, सैंपल,
ये भी देख के समझ आ जाएगा क्या है ये। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कर्ली ब्रेस, यस सर। स्क्वायर सर ब्रैकेट, एक कलेक्शन है सर। कलेक्शन। कलेक्शन, कलेक्शन कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ये ऑब्जेक्ट्स बोल रही ऑब्जेक्ट्स। है ना। यस सर। ताकि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ये देखो ये क्या चीज़ है, टाइप, पैटर्स, एक बना रहे things है। तो id is one field, type and so on, then we have patterns है, देन patterns is an ऑब्जेक्ट। object है ना, यस उसके सर, अंदर एक फिर कलेक्शन कलेक्शन से। है ना। यस सर, we फिर have एक one और more कलेक्शन। एक कलेक्शन है। यस वही। डोंट थिंक ये समझ में नहीं आ रहा होगा किसी को। सर ये नीचे वाले जो आईडी वाले है तो सारे ऑब्जेक्ट्स ही है ना। हाँ ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, हाँ। ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके सर ठीक। टॉपिक से कलेक्शन है, कलेक्शन ऑफ क्लास हो सकता सर यहाँ पे है, तो शायद सर ये जो ये क्या है टॉपिंग है यहाँ पे, कलेक्शन जो यूज किया है सर, मैप यूज किया है सर कि पेयर। थोड़ा सा जूम हो सकता है क्या थोड़ा सा। जैसे ये जो टॉपिंग है इसमें जो ये आईडी और टाइप्स है यहाँ पे तो शायद मैप यूज हुआ है ना टॉपिक्स मैप क्यों कह रहे हो। सर, क्योंकि सर यहाँ पे आईडी और टाइप की वैल्यू दोनों यूज हो रहा है। हमने यूज नहीं करा, नहीं किए। यस। यस किए वो हैं लाइन हम। में था इसलिए तो मैं ऐसे कन्फ्यूजन यस। यस सर, है। यस। समझ में ना आए तो फॉर्मेट कर लो। चलो ठीक है, मुझे ऐसे भी कर लेते हैं, मुझे अभी कुछ समझ नहीं क्या चल रहा है ये। थिंक अबाउट कि अभी तो सिर्फ 4-5 ऑब्जेक्ट्स हैं, कहोगे तो क्या मैनुअल जाके ये सब काम करोगे, नहीं कर सकते ना। लेट मी शो यू वन सिंपल ट्रिक, बहुत सिंगल ट्रिक है ये, मैंने बहुत यूज़ करी है। तब अभी तो आपको ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है थोड़ा सा, मेरे पास ये जो राइट नाउ द प्रोजेक्ट आई एम वर्किंग ऑन, इट हैज़ मोर देन 25,000 लाइन्स ऑफ, अभी छोटे छोटे हैं ये अच्छे लग रहे हैं, जब यही लाइन 2,000-3,000 मेरे पास 25,000 की लाइन का कन्वर्ट करना है, वहाँ पे चीज़ें टिपिकल हो जाती है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है। नहीं हर बार थोड़ी 25,000 लाइन समझते हो कितना होता है, पूरा दिन निकल जाएगा, हो नहीं पाएगा खत्म। देन यू कैन गो फॉर दिस, हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ पे क्या करो, जो भी ऑब्जेक्ट आपके पास है, जैसे दैट्स हाउ जेसन लाइक, पे जाओ, बॉडी पे जाके मैं यूज़ करना सिखा दूंगा, अभी शॉर्टकट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जेसन क्लिक पेस्ट करूँगा, वैसे कुछ आ गया, नहीं समझ में आ रहा है कोई बात, यहाँ पे एक बटन होता है ब्यूटी, ये क्लिक कर दो, अब भाई है ना, बॉडी दिख रहा है, यस सर। ये वाली यस बन सर। गए फील्ड है ना, क्या बटन किया ब्यूटीफाई, वैसे ही 10 लाइन हो 10,000 लाइन हो डजेंट मैटर, थोड़ा सा सिस्टम की कॉन्फ़िग के हिसाब से टाइम ले सकता है, सब कुछ प्रॉपर जेसन में आ जाएगा। तो आप लोगों को जेसन समझ में आ चुका है, हाउ यू कैन रिप्रेजेंट जेसन ऑब्जेक्ट्स, डन। ये सैंपल ऑब्जेक्ट था, रैंडमली पिक किया, कहने कि अब अगर आप रैंडम कोड देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब एक चीज़ बता दो हाईलाइट करके कि एग्जैक्टली आप क्या करने वाले हैं कल से, ये स्प्रिंग बोट है तो पढ़ना शुरू करें। अगर मैं वापस अपने स्टार्टिंग में जाऊँ, जब हमने सारा कोर्स स्टार्ट किया था, स्टार्टेड विद, तब देखा था, तब हमें हमने एक टॉपिक देखा था डीबीसी, हमने यस करा क्या सर। था, हमने डेटाबेस से कनेक्ट किया था राइट, और यस सर। यस सर। ठीक है, फिर हमने एक सर्वलेट जेएसपी स्टार्ट किया था, तो अभी हमने डेटाबेस से कनेक्ट किया था राइट, डीबी कॉल किया था हमने, यस सर। फिर हमने हाइबरनेट करा, हाइबरनेट इज ऑल अबाउट डेटाबेस, अभी डीबी कॉल चली थी। अब इन तीनों फ्रेमवर्क में स्प्रिंग पे भी करना था, लेकिन स्प्रिंग फ्रेमवर्क में थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स होता था, तो लेट्स सेव सम टाइम, अब हम लोग स्प्रिंग बूट में, मैंने वहाँ पे थोड़ा सा टाइम बचाया आप लोग के लिए, बस वहाँ पे भी 2-4 दिन निकल जाते हैं। अगेन nobody, at least from you guys nobody going to use that thing, but yeah it's possible that you can connect your Java application, I mean Spring core application with database. But what was the common thing about this whole thing, we were doing some operation, right, थोड़ा operations कर रहे थे हम लोग, यस सर। यार यूडी का फुल फॉर्म पता है वो नहीं लिखा। अब बारी है स्प्रिंग बूट भी कुछ नया, ऐसा कुछ नया नहीं करने वाला, अगेन विल डू बेसिक स्टफ, दैट इज
डीबी कॉल्स, हालांकि बाकी चीज़ डेटाबेस चलेंगी। क्लासेस। डेटाबेस क्लास दिमाग में क्लास चलता है। यहाँ पे भी डीबी कॉल्स होंगी, और डीबी कॉल्स मतलब खड़ा ऑपरेशन चलेंगे। कर देते हैं। अब इसमें थोड़ा सा तरीका डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि हम एग्जैक्टली वेब एप्लीकेशन बनाएंगे, पर वो वेब एप्लीकेशन नहीं होगा, वो कुछ और ही होगा, होंगी एपीआईस। कॉमन थिंग अबाउट दिस होल फ्रेमवर्क एंड दे आर परफॉर्म थर्ड ऑपरेशन। जब हमने यहाँ लेफ्ट साइड में किया था, तो हमने सिंपल वो एसक्यूएल क्वेरीज यूज की थी, राइट? एसक्यूएल क्वेरीज हमारे पास रैक था, लिखे थे एंड डिलीट। डेट। तो हमने ये सारे काम किए थे बेसिक इन लेफ्ट साइड से। सेम काम हम यहाँ से भी कर रहे हैं स्प्रिंग बोर्ड से। स्प्रिंग बोर्ड में डिफरेंस क्या होगा कि ये सारे कॉल जाएंगे, वेब कॉल जाएंगे। ठीक है, आप एक्जैक्टली अपने एप्लीकेशन चलाओगे। याद है जब हमने सर्वलेट जिस पे स्टार्ट किया, तो हमने एक इसमें सर्वर ऐड किया था। कौन सा सर्वर था वो? सर टॉमकैट। टॉम कैट। टॉमकैट अपाचे था ना। स्प्रिंग यस बूट की सर। फंक्शनैलिटी आप लोग कल पढ़ के आइए, मुझे बताइए स्प्रिंग फीचर्स। तो पढ़ के अच्छी बात है, नहीं पता तो और फीचर्स पढ़ के आओ। नेक्स्ट पढ़ के आओ फीचर्स के बाद HTTP वर्ब्स। ओके सर। देखो क्या होता है HTTP वर्ब्स, क्या अजीब सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस क्रिएट थिंग। प्रोजेक्ट। देयर आर 3 वेज। फर्स्ट ओके है सर। एक स्टार्टर साइट है, वो यूज़ कर लो। CLI यूज़ कर सेकंड लो। एचटीएस। यस यस, ये पढ़ के आओ। और विच वन इज बेटर, मैं आपका पॉइंट ऑफ व्यू सुन करके आइएगा। छोटे छोटे क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ी चीज़ स्टार्टिंग है, टेक इट स्लो, पढ़ेंगे धीरे। ओके, नाउ व्हेन इट कम्स टू CRUD ऑपरेशन, तो चाहे आप ये लेफ्ट सेक्शन ले लो या राइट सेक्शन ले लो, दोनों अल्टीमेटली ये परफॉर्म करने वाले हैं। डिफरेंस क्या होगा? स्प्रिंग बोर्ड से सारी कॉल जाएंगी ये वेब कॉल्स, और जब वेब कॉल जाएंगी तो इसमें 4 तरीके होते हैं, अभी बस नाम मेंशन कर रहा हूँ, कल डिटेल में पढ़ेंगे। तो व्हेन इट कम्स टू सेलेक्ट, यहाँ पे चलेगा गेट। गेट। जब इंसर्ट चलेगा तो पोस्ट। पोस्ट, फिर चलेगा तो सर अपडेट में तो अपडेट ही होता है। अपडेट में। ऐसे बोल दो जैसे मैं कुछ और बताने वाला हूँ। हाँ भाई, अपडेट होता है, मतलब ये तरीके होते हैं ना। हाँ से कर, एक बार हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, पढ़ रखा है तो थोड़ा सा और पढ़ लीजिएगा, ताकि ओके सर। ऐसे पूछ सको कि सर हमने इतना पढ़ा पर ये भी पढ़ा, ऐसे कुछ तो मजा है। अदरवाइज मैं जितना मुझे पता है उतना आपको ज़रूरी है अभी स्टार्टिंग के लिए, उतना मैं जरूर। ठीक है जी, तो हमने जो लेफ्ट साइड में किया था वो अब तक कर चुके हैं बेसिक एसक्यूएल क्वेरी से। अब यहाँ पे हम वेब कॉल्स चलाएंगे। ये वेब कॉल्स ये वाला गेट टू, सॉरी माय बैड यार, विपिन मत पढ़ाते, याद होगा क्या मेरे, हुआ सर? डेट नहीं होता है, डेट नहीं होता, ओके सर। मत पढ़ लेते। ठीक है जी, ये आप लोगों का काम है, ये आप लोग करिए, ये होमवर्क है। और टुडे वी जस्ट गॉट थ्रू द बेसिक स्टफ्स के स्प्रिंग बूट कर रहे हैं, देन जेसन स्टफ्स, और थोड़ा सा हल्का सा ओवरव्यू दिया कि कॉल्स कैसे जाती हैं, कम्युनिकेशन पढ़ा क्लाइंट से बैकएंड पे, बहुत सारे ट्रांजेक्शन देखी, कॉल ऑब्जेक्ट कैसे टेक्स्ट टू जेसन इज अल्टीमेटली बड़ा। तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इसलिए बड़ा लगा होगा, फंडामेंटल वो भी। अब आप लोग को काम करने हैं जो बारे में, तो कल से स्प्रिंग बूट प्रॉपर स्टार्ट करेंगे, तब ओके सर। बेसिक हो जाएंगे। बस मेक श्योर दैट यू हैव अ पोस्ट। ओके, तो क्वेश्चन करिए तो यस सर। पूछिए रिगार्डिंग टॉपिक। सर वो टेम्पलेट वाला जो आप वो शेयर कर देना हाँ मेरे को सर एक बार। शेयर कर दूँगा। और ठीक है, फिर कल मिलते हैं क्लास में ना। यस ओके सर। सर।